हाँ, कोई दिक्कत
Hello everyone, can you hear me? Yeah, hello guys, how are you? Hello Rahul, can you hear me? All right, so guys, this is our lecture number 2 on the chapter motion in a straight line. And in this chapter, we are going to talk about the graph based questions basically. We had a lecture number 1, and in that lecture, we had a discussion about the motion in a straight line, but that was a numerical discussion, if you remember. So, how many of you were there in my previous session? First, tell me through the chat box. How many of you were there in my previous session? Yeah. Okay. So 5 people were there. Okay. 6, 7. Right. That's great. So many people were there in my previous session. That's great. Okay. So let us begin the session now. All right. Yeah. So Siddhant has also come. Siddhant, can you hear me? Yeah. Yeah. You're coming late. Exactly. Yes, Sahil. How are you? Okay. So shall we start now? Ready? By the way, I guess I gave you one homework problem in the previous session. Have you solved it? I gave you one homework question in the previous class. Did you solve it? Yeah. Guys, can you hear me? Just respond in the chat box if you are able to hear me. If you can hear me, just tell me through the chat box if you can hear me. Hello? You can hear me. Okay, Sahil, thank you. Yes, what about others? What about Purvi? Can you hear me, Purvi? Okay, okay, thank you. Yes, guys. So let us begin now with our next set of question from the book H.C. Verma. So as I said in the previous class, we'll be taking few questions from the S.C. Verma book. All right. And now there is a question in the book S.C. Verma, right, which tells you how to calculate the acceleration of the lift. Let's say, suppose you are in a lift and that lift is going downwards. Imagine you are in a lift and that lift is going downwards. And now you want to measure the acceleration of the lift. Can you tell me how would you do that? You do not have any instrument to measure the acceleration. Can anybody tell me how would you do it? Suppose there is a lift, it is going downwards and it is accelerating downwards. And now you want to measure the acceleration of the lift. How we will do this? Any idea? Apparent weight. Apparent weight, but उसके लिए फिर आपके पास वेट मशीन नहीं है. मैंने कहा ना, you do not have an instrument. You can assume that you have your mobile phone. Okay. Mobile phone भी ले लेते हैं चलो. You can assume you have the 5 rupees coin or something like that. How you can measure the acceleration of the lift? कोई आइडिया कि सर ऐसे कुछ कर देंगे, ये कुछ कैलकुलेट कर लेंगे? नो. चलिए चलते हैं एससी वर्मा के क्वेश्चन नंबर 1 पे. दैट विल टीच यू हाउ टू मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट if you are in a part of lift. Let's go. So that's the question number 31 from the exercise section of SC Verma. An elevator is descending with a uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin. At the moment the elevator starts,
तो एलिवेटर अभी स्टार्ट होने वाला है और व्हाट दिस पर्सन डज, ही लीव्स अ कॉइन और बताया गया है कि इनिशियली द कॉइन इज 6 feet above the floor of the elevator the time it is dropped. Then the person observes that the coin strikes the floor after 1 second. तो आपको बताना है कि what is the acceleration of the lift. चलिए कैसे कर सकते हैं, सोचिए एक मिनट, देन वी विल डिस्कस. सेम वही सिचुएशन है जो मैंने अभी आपको बताया. एलिवेटर गोइंग डाउनवर्ड्स, वी हैव टू मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर. सो ही हैज अ कॉइन, सो ही ड्रॉप्स द कॉइन. और आपको बताया गया है कि फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द कॉइन, floor of the lift, initially the coin is 6 feet above and it takes 1 second of time for the coin to come down. So from this data you have to calculate the acceleration of the elevator. बताइए कैसे कर सकते हैं. Yes, any idea? Someone's mic is on, can you please turn it off? No idea. V square equals to U square plus 2GS. That's what you are suggesting. कितने लोग कहते हैं इससे क्या होगा भाई? फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है ईसा. We don't know the final velocity. How would you measure then? How will you calculate the final velocity from this information? या तो वो कर लो पहले, then we can do it. But we don't know the final velocity. S equals to ut plus half at square. तो अब इसमें ये बताइए कि what is the displacement? कहां से वर्क करेंगे आप? ग्राउंड से, from 6 feet. Okay. तो what is the initial velocity you will take? 0. ठीक है, वो भी एक मेथड हो गया, सही है. वो भी ठीक है, एक मेथड हो गया. परफेक्ट. मतलब बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव मोशन. यस और नो? ठीक है, करेक्ट. दैट इज वन ऑफ द मेथड. सही है. एनीथिंग एल्स? अब देखो, हम इसको बिना रिलेटिव मोशन के करते हैं, राइट, विदाउट टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द रिलेटिव मोशन, है ना. रिलेटिव मोशन से कुछ बच्चों को थोड़ी परहेज रखते हैं, वो उन्हें लगता है कि रिलेटिव मोशन थोड़ा टफ होता है. रिलेटिव मोशन से भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है. बट विदाउट रिलेटिव मोशन लेट अस ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए स्टार्ट करते हैं. सिचुएशन को समझिए एंड यू विल गेट द आंसर. देखो, इनिशियली इफ यू सी, कहीं पे भी एट एनी लोकेशन, यहां पे वी हैव द लिफ्ट एट दिस सर्टेन हाइट, और इफ यू लुक at the stone, then stone would also be there at a 6 feet above the floor of the lift. तो यहां ले लेते हैं हम. सही है. This is the situation at t equal to 0. अच्छा, now what happens after 1 second? After 1 second what happens? The stone reaches at the bottom of the floor. So let us draw the new situation कि भाई लिफ्ट भी एक्सेलरेट कर रही है, तो इट विल कम डाउन. अब स्टोन के साथ क्या होगा? स्टोन वुड बी एट दिस लोकेशन. क्या you all are able to understand the situation? कि at t equal to 0, that is the situation, and at t equal to 1 second, this is the situation. Is everyone clear about this?
You have to write in the chat box. Otherwise, I would not know. Okay. Now, if we see the motion of the lift, lift has covered this much distance. Let's say this number is x. Yes or no? And suppose that the acceleration of the lift is a. So क्या इक्वेशन लिखेंगे हम लिफ्ट के लिए? X is equal to ut plus half at square. But what is the value of u for the lift? 0. Exactly, true. Value of u is 0 for the lift. इसका मतलब हमें क्या बोलना चाहिए कि यहां पे x is equal to 0 plus half at square. तो एक सेकंड में ऐसा हुआ तो we will say half acceleration we have assumed to be a, right? जो हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, which is unknown for us. अच्छा, अब देखें, टाइम इज 1 सेकंड का स्क्वायर, so x value would come out to be a by 2. This is our equation number 1. बताइए एवरीवन, क्या इस सबको समझ में आया? x is equal to a by 2. ओके, परफेक्ट. अब चलते हैं हम आगे स्टोन पे. लेट अस गो टू द स्टोन. यस, दिस इज फॉर द लिफ्ट. लिफ्ट का एक्सेलरेशन आई हैव एज्यूम्ड a, ठीक है, एंड लेट्स से दैट लिफ्ट मूव्स डाउन बाय द डिस्टेंस x. मैं ग्राउंड से वर्क कर रहा हूं, एवरीथिंग आई एम वर्किंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, ठीक है. अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं कि वर्किंग फ्रॉम द लिफ्ट फ्रेम या ऐसा कुछ. फिर वो लोग आप कर सकते हैं शूडो फोर्स और वो सब, ठीक है, बट इतना कॉम्प्लिकेट नहीं. इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम द मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सो आई एम अज्यूमिंग कि यू डोंट नो द अदर थिंग्स. सो x इज इक्वल टू a by 2. दैट इज द इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ द लिफ्ट. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखिए. नाउ वी विल वर्क फॉर द स्टोन या कॉइन, जो भी आपने ड्रॉप किया है. दिस वाज फॉर द लिफ्ट. अब आप ये बताइए कि what will be the displacement of the stone in 1 second ग्राउंड से. लिफ्ट का एक्सेलरेशन हुआ x. what is the total displacement of the stone with respect to ground? Information, you can read the question once again. Lift is going downwards and the acceleration is a, we have assumed it. We have to calculate that value. Initially the coin is 6 feet above the floor of the elevator when it was dropped. तो आपको 1 सेकंड के बाद पता चला कि वो नीचे पहुंच चुका था. अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट. तो हमने मान लिया कि लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ x. तो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं. क्या आप बता सकते हैं? इफ दिस इज x, देन व्हाट विल बी द मोशन ऑफ द स्टोन. अगर आप ध्यान से देखें तो क्या स्टोन ने इतना डिस्टेंस कवर किया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? क्या स्टोन हैज कवर्ड दिस मच डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? एग्जैक्टली, दैट्स द राइट आंसर. x plus 6. बहुत सिंपल आंसर है. दिस टोटल डिस्प्लेसमेंट इज x and this total displacement is 6. Yes, you all can reply in the all chat. No need to reply in the private chat. It would be much better so that other can also see your answer. You just have to select all chat, everyone. That's what you have to select. है ना? अगर आप प्राइवेट चैट में रिप्लाई करेंगे तो others would not get to know कि आप क्या लिख रहे हैं. ठीक है, आ जाइए. अब देखिए, तो अगर हम स्टोन की बात करें तो स्टोन का टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ x प्लस लेंथ ऑफ द लिफ्ट. तो we would say x plus 6. That's what I'll write. That would be equal to, अब इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 है तो 0 लिख दिया. हाफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन. अब स्टोन तो हवा में था ना भाई. द स्टोन वॉज इन द एयर. यस और नो? The stone was in the air. It was not in the over a part of lift. I mean, it was not attached to the lift. It was in the air only. So we will write half gt square free fall motion.
तो x प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब t का वैल्यू हमें पता है, इट्स 1 सेकेंड, सो हम पुट कर देंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू a बाय 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। आइए, now what we will do, we will use the equation number 1 here in the equation number 2. So we shall write a by 2 plus 6 is equal to, अच्छा ये मैंने गलती कर दिया यहाँ पे, we should write g by 2 here is equal to g by 2. Let's go back to the question. The coin's distance from the floor of the lift is given to be 6 feet. तो यहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू भी हम फीट पर सेकंड स्क्वायर में पुट करेंगे. So what I'll put here, see carefully, a by 2 plus 6 is equal to 32 by 20 by 2. Hence we will get the answer. यहां लिख लेते हैं हम, a by 2 plus 6 is equal to 16. a by 2 is equal to 16 minus 6 is 10. So a is equal to 20, but this time the answer would be in feet per second square. तो ये था क्वेश्चन नंबर 31 फ्रॉम दी एससी वर्मा. समझ में आया एवरीवन? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन. ऑलराइट, और इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सपोज यू आर इन अ लिफ्ट एंड इफ यू वांट टू मेजर इट्स एक्सेलरेशन, then simply you can just drop a coin from a certain height of the lift, and that height you would know easily, है ना? कुछ ज्यादा नहीं होती है, फीट्स में होगी, 3 4 5 6 feet, and then from there we can find out the acceleration of the lift. So is this clear to everyone? Shall we go to the next problem? कोई doubt है तो you can ask in the chat box. Okay sir, let's go to the next problem then. That's another question from SC Verma. Conversion, which conversion Bishopdeep? हमने फीट पर सेकंड स्क्वायर में रख दिया उसको, है ना? वी हैव केप्ट इट इन फीट पर सेकंड स्क्वायर ओनली. ओके, यू कैन कन्वर्ट दिस, बिकॉज ग्रेविटी का वैल्यू जो होता है वो आप पढ़ते हो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. यहां पे ग्रेविटी का वैल्यू हमने पुट किया फीट पर सेकंड स्क्वायर में, विच इज 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर. इसलिए आपको शायद समझ में नहीं आया होगा. ये आप याद रखें कि कुछ क्वेश्चंस में समटाइम्स दे गिव यू द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी. आई मीन जो यूनिट्स होती है वो मीटर्स में नहीं देते हैं. अगर सेंटीमीटर में दे दे तो भी आप बदल लोगे, फीट में नहीं देते हैं. फीट में आपको जनरली याद नहीं होता, तो यू शुड रिमेंबर दिस डायरेक्टली. ठीक है? यस 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 एग्जैक्टली. आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम इन द एग्जाम टू कन्वर्ट. तो इसलिए बेटर है कि बिकॉज जी तो बार बार यूज होगा, तो बेटर यू रिमेंबर इट डायरेक्टली, है ना? Ashish, Vishwadeep, you all reply in the old chat so that other can also see what you guys are asking. है ना? Great, nice. आ जाओ. Next question. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर. अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग बिना सोल्व किए करें तो पहले बताइए, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, यू टेल मी व्हाट डू यू फील, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन without using pen and paper? Two particles A and B starts from rest and move for equal time on a straight line. Particle A का acceleration is small a for the first half. जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है A, it moves from A to it moves from this location 1 to location 2. Okay, and now for the first half of the time it moves with an acceleration a. ये acceleration है a, and for the second half the acceleration is 2a. अब सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या बोला गया कि सेकेंड पार्टिकल ऐसे चल रहा है कि फॉर द फर्स्ट हाफ इट्स एक्सेलरेशन इज अपोजिट है 2a, एंड फॉर द सेकेंड हाफ इट्स एक्सेलरेशन इज a. मतलब टाइम के डिविजन्स में दिया हुआ है आपको
जैसे मान लो टोटल टाइम 2t है, कुछ नंबर ले लो आप, लेट्स से टोटल टाइम इज 2t। तो t टाइम के लिए पार्टिकल ए एक्सेलरेशन से चलता है, एंड फॉर द नेक्स्ट t टाइम द पार्टिकल ए कवर्स द डिस्टेंस विद 2a एक्सेलरेशन। इफ यू टॉक अबाउट द पार्टिकल बी, तो 2a के साथ वो फर्स्ट हाफ के लिए चलता है, एंड देन विद एन एक्सेलरेशन a इट गोज विद द सेकंड हाफ। आपको बताना है कि विच पार्टिकल हैज कवर्ड द लार्ज डिस्टेंस। टाइम तो दोनों का सेम है, ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया ये आपसे पूछा हुआ है। इट सीम्स लाइक द सेम एग्जैक्टली, है ना, किस दोनों के लिए सेम होगा। थोड़ा सा सोचो, अब थोड़ा सा पेन भी चलाओ। नाउ इफ यू विल यूज पेन एंड पेपर यू माइट फाइंड इट इजी, जल्दी आंसर आ जाएगा। इंट्यूशन से कई बार इसके आंसर गलत भी आ जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जिसकी वेलोसिटी बाद में बढ़ेगी, जैसे फर्स्ट पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन ए है और बाद में उसका एक्सेलरेशन 2a हो जाता है। चलो वो आपको लास्ट में बताता हूं, पहले बता दूंगा तो फिर आप लोग को हिंट मिल जाएगा एक। इसमें गलत तरीके से आंसर आ जाता है और ऐसा बिल्कुल महसूस होता है कि बिल्कुल सही तरीका किया है हमने, है ना। तो पहले आप लोग करके देखें क्वेश्चन। यस गौतम, यू हैव गिवन द राइट आंसर। डिड यू यूज पेन एंड पेपर और डायरेक्टली आपने आंसर निकाल दिया? डायरेक्टली कैसे गौतम? ये तो अच्छी बात है। बट वो तो फिर फर्स्ट वाले के लिए भी होगा गौतम। फॉर द फर्स्ट पार्टिकल ऑल्सो इट विल बी ग्रेटर, उसके पास भी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन तो दोनों के पास है इनिशियल हाफ टाइम पे। इफ यू आर टॉकिंग इन दैट सेंस, तो हाफ टाइम के बाद में सेकेंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी तो कम हो रहा है और फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। चलिए सोल्व करें हम ये क्वेश्चन। यस ऑल ऑफ यू, shall we solve this? ओके चलिए लेट्स सोल्व द क्वेश्चन। आ जाइए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें फॉर द पार्टिकल नंबर 1, तो व्हाट दिस पार्टिकल नंबर 1 इज डूइंग, this particle number 1 is moving with an acceleration a for the first half of the time, and we have to calculate कि total distance कितना travel किया particle a ने। Let us talk about the particle a first of all. Particle a, आ जाओ। तो पार्टिकल ए का मोशन कुछ ऐसा हो रहा है भाई। लेट्स से टोटल टाइम इज 2t, तो हाफ टाइम हो गया t, तो t टाइम के लिए यहां तक चला, उसके बाद में फिर यहां से यहां जाएगा पार्टिकल, और ये भी टाइम कितना लिया इसने, t, मतलब टोटल टाइम हो गया है 2t। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस लिखते हैं और फिर ये वाला डिस्टेंस लिखते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। लेट अस टॉक अबाउट द डिस्टेंस s1। s1 होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, हाफ, एक्सिलरेशन a, टाइम लिया t, हाफ at स्क्वायर हो गया। ठीक, अब s2 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट समवन्स माइक इज ऑन। यस yes, I have muted everyone now. Okay, so s2 is equal to हाफ। अब s2 की अगर हम बात करें तो s2 में एक गलती कर देते हैं हम लोग यूजुअली कि यहां पे हम हाफ एटी स्क्वायर लगा देते हैं, बिकॉज हमें याद रहता है कि इनिशियली पार्टिकल वॉज एट रेस्ट। बट यहां पे क्या पार्टिकल वॉज एट रेस्ट? क्या यहां पे पार्टिकल वॉज एट रेस्ट एट दिस मोमेंट? नहीं,
उसकी स्पीड कुछ बढ़ जाएगी ना भाई। यहां पे इट वाज एट रेस्ट, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, तो यहां पे व्हाट विल बी द वेलोसिटी? u plus at. Did you understand this point? कि at t equal to 0 the velocity was 0, but after time capital T the velocity will become u plus at. Now I am applying the equation from here to here, तो यहां वाला initial velocity I am supposed to use, इसलिए I will write ut, और ut के प्लेस पे I will write a into capital T. ठीक है, ये at क्यों लिखा है? You should understand this, because यहां पे initial velocity is not 0 s2 के लिए, it is already a into capital T. Total time is t plus हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2a, और टाइम का स्क्वायर. अब ये 2a क्यों लिखा है? बिकॉज आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार. द क्वेश्चन सेज कि फॉर पार्टिकल ए सेकंड हाफ में टोटल एक्सेलरेशन इज 2a. अब दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए. सो हाफ at स्क्वायर प्लस दिस टर्म इज नथिंग बट at स्क्वायर प्लस हाफ. अच्छा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसको हम at स्क्वायर लिख देते हैं. So what we are getting, guys? Tell me. 280 square plus half 80 square, which will give you 5 by 280 square. Let's discuss about the particle B. तो क्या आपको क्लियर हुआ about particle A? Everyone is clear about this? कोई confusion? Particle अब similarly exactly in the same way we will talk about the particle B also. क्या बड़ी बात है उसमें? देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ये हाफ टाइम t, फिर ये दूसरा हाफ t, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0, और यहां पे आके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बताना जरा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी हियर नाउ आफ्टर द फर्स्ट हाफ? यस विश्वदीप, शुड आई रिपीट द फर्स्ट पार्ट? देखिए विश्वदीप, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज s1 प्लस s2, है ना? और जो s1 है वो हमने लिखा हाफ at स्क्वायर, और s2 हमने क्या लिखा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बिकॉज s2 कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? ओनली दिस डिस्प्लेसमेंट. एंड फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी इज वॉट एवर इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, और वो जीरो नहीं है. वो कितना होगा? v इक्वल टू u प्लस at. इसलिए मैंने यहां पे u इंटू टी, तो u लिखा मैंने 80, टाइम लिखा मैंने t प्लस हाफ. एक्सिलरेशन अब कितना हो गया? 2a फॉर द सेकेंड हाफ मल्टीप्लाइड टाइम का स्क्वायर. अब इसको सोल्व कर लो. एनी फर्दर डाउट विश्वदीप? गॉट इट? अब सिमिलरली यू डोंट नीड टू लुक एट द बोर्ड नाउ, यू कैन सोल्व योर सेल्फ ऑल्सो. आई एम सोल्विंग इट इन द बोर्ड. देखो और बताना मुझे सही आंसर आया कि नहीं आया आपका. u equal to 0 at the initial moment, and then after time capital T the velocity will be 2at. अब ये 2a क्यों लिख दिया? क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन कितना है गाइस? 2a, और इस पार्ट के लिए एक्सेलरेशन है a. ये पार्टिकल b की बात हो रही है. So if you talk about the particle b in the first half, let us call this as a displacement s3 and this as a displacement s4. So if I talk about the displacement s3, I will be writing as half initial velocity 0 है into 2a multiplied t square. If I talk about the s4, I will be writing as ut plus half at square. Are you able to understand the reason now? कि उसके लिए 0 हो गया initial velocity, यहां पे 0 नहीं हुआ, because at this moment particle will have some velocity. फिर से same logic जो मैंने यहां समझाया था आपको. तो what will be the velocity at this moment now? As I said previously, 280. So equation apply करते हैं. ut plus half at square. Now the initial velocity is 280 multiplied time t plus half. एक्सीलरेशन a हो चुका है और टाइम हो गया है t. So s4 is equal to what? 280 square plus half 80 square, and s3 was equal to 80 square. So now you see
व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? अगर आप ध्यान से देखें तो S3 plus S4 is the total displacement of particle B. So how much it is coming? 280 square plus 80 square, 380 square plus half 80 square, which is 7 by 2, right, Isa? That is the total displacement of particle B. अब आप जरा कंपेयर करके देखिए. Obviously the particle B is has covered more displacement. अब हम इसको सोचते हैं कि गलत आंसर कैसे आ जाता है. देखो अब जरा आप देखिए कि हाउ डू वी गेट द रॉन्ग आंसर. हमें लगता है कि भाई पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन पहले ए था और बाद में वो 2a हो गया. इसका मतलब जब उसका 2a होगा उससे पहले उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी और उसमें इंक्रीमेंट अब ज्यादा होगा. अब उसमें इंक्रीमेंट ज्यादा होगा तो हमें लगता है कि वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा, राइट? बट ऐसा नहीं है. व्हाट मैटर्स कि कितने टाइम के लिए आपका एक्सेलरेशन ज्यादा था. तो अगर आप ये चीज देखें तो पार्टिकल बी के पास ज्यादा टाइम तक ज्यादा वेलोसिटी रही होगी. यस और नो? आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? कि पार्टिकल बी के पास ज्यादा टाइम तक ज्यादा वेलोसिटी रही होगी. व्हाई? बिकॉज इन द फर्स्ट हाफ इट्स एक्सेलरेशन वाज 2a, राइट? एग्जैक्टली. और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो कई बार इसमें गलत आंसर आ जाता है, इसलिए बेस्ट होता है कि आप उसको न्यूमेरिकली सोल्व कर लें तो आपका कभी आंसर गलत नहीं आएगा उससे. ठीक है? तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम द शॉर्ट आंसर टाइप. अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो ग्राफ बेस्ड है फ्रॉम एस सी वर्मा बुक. क्वेश्चन नंबर 11. इट इज अ सिंपल क्वेश्चन. एक ग्राफ दिया हुआ है, पोजीशन वर्सेस टाइम. यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम t when the average velocity becomes 0. तो कुछ नंबर्स यहां पे मैं शो कर देता हूं आपको अप्रोक्सीमेटली, है ना? ये यहां पे नंबर्स शोन नहीं है एक्चुअली. इन द बुक ऑल्सो द नंबर्स आर नॉट शोन. तो वी कैन गिव द अप्रोक्सीमेट आंसर. लेट अस टेक द स्केलिंग एज दिस इज 11, दिस इज 12, दिस इज 13 एंड सो ऑन. तो बताइए एट व्हाट टाइम the particle will have average velocity equal to 0? That's the question. Yes. Any answer? At what time particle will have the average velocity 0? अच्छा, by the way, what is the meaning of average velocity to be 0? क्या total displacement has to become 0? ईसा 9? नहीं, 9 पे कैसे हो जाएगा? चलो मान लेते हैं कि ईसा योर आंसर इज करेक्ट. Let's assume. Yes, Aditya, that is more accurate. Let's assume कि ईसा योर आंसर इज करेक्ट. ठीक है? तो अगर हम यहां पे देखें कि t इक्वल टू 9 सेकेंड विल बी समवेयर हियर. अब ये x इज इक्वल टू 20 है. अब ये x इज इक्वल टू कुछ 8 होगा. तो चेंज इन पोजीशन कितना होगा? 20 माइनस 8, 12. और टाइम भी कुछ लगा ही है उसमें, अराउंड 8 सेकेंड. कितना बोला आपने? 9. यस, सो 9 सेकेंड्स. तो ये तो कुछ आंसर आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बिकॉज चेंज इन पोजीशन इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ओनली. तो यहां से तो कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा. कब होता है डिस्प्लेसमेंट 0? when particle comes back to the same initial position. yes or no? तो बस अब आप ये देख लो कि when does the particle comes back to the same initial position. तो ये रही इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 पे. ध्यान से देखिए आप, और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो. ये रहा. अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल विल हैव द सेम पोजीशन अगेन?
क्या इस टाइम के corresponding पार्टिकल विल हैव द सेम एक्सेलरेशन, सेम पोजीशन अगेन? एग्जैक्टली। तो मतलब टाइम विल बी मोर देन 10 सेकेंड्स, मतलब अराउंड 11-12 सेकेंड्स कुछ आंसर होगा, बट वो एग्जैक्ट स्केलिंग हैज बीन नॉट शोन हियर। ओके, सो वी कैन से द आंसर वुड बी अराउंड t इक्वल टू 11 और 12 सेकेंड्स। क्यों बोला ऐसा, ध्यान से समझें। What is the meaning of average velocity to be zero? The total displacement has to be zero. And when will be the total displacement zero? जब पार्टिकल अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। सबसे पहले तो आप ये बात का ध्यान रखें कि ये पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री नहीं है। इज दिस हाउ पार्टिकल इज मूविंग, जैसा ग्राफ में दिखाया हुआ है? इज दिस हाउ पार्टिकल इज मूविंग? तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा इसमें, कोई बता सकता है? पैराबोलिक, कैसा मोशन होगा? सर्कल, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला? कांट से एनीथिंग। वेरी गुड विश्वदीप, राइट आंसर। कैसे बोला विश्वदीप आपने? मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि which the graph shown for a particle, xt graph for a particle is shown. The motion of the particle is straight line, parabola, ellipse, hyperbola. Particle is moving according to this relation. Yes is a right answer. अरे xt ग्राफ है ना, तो पार्टिकल की पोजीशन एक्स के लॉन्ग चेंज हो रही है टाइम के साथ। वाई में कोई वेरिएशन है नहीं, जेड में कोई वेरिएशन है नहीं, तो कैसा ग्राफ होगा ये? स्ट्रेट लाइन। सॉरी, पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अब थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करें तो पार्टिकल कहीं एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0 और ये है कुछ एक्स इज इक्वल टू 20, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इज एट दिस लोकेशन। अब पार्टिकल क्या कर रहा है? पोजीशन इज डिक्रीजिंग, यस और नो? देखो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, पोजीशन इज डिक्रीजिंग। चलो, तो पार्टिकल अब ऐसे चलना स्टार्ट करेगा स्ट्रेट लाइन में, चलता जाएगा यहां तक पोजीशन इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। यू शुड एनालाइज दिस ग्राफ। यहां तक पोजीशन इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग टिल 10 सेकेंड्स। इसके बाद क्या होता है? अगेन पोजीशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, बट क्या अलोंग एक्स एक्सिस ओनली? यस। तो मतलब फिर से पार्टिकल अब टर्न कर जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो क्या यहां पे स्लोप जीरो हो रहा है? क्या यहां पे स्लोप जीरो हो रहा है? होना भी चाहिए, बिकॉज वेलोसिटी हैज टू बिकम जीरो टू टू टर्न। वेलोसिटी को जीरो होना पड़ेगा, तो dx by dt इज बिकमिंग जीरो देयर। तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस डिस्कशन कि कैसे आपको ग्राफ को एनालिसिस करना है? तो केवल आंसर नहीं लेना है उससे, बस आपको वहां से एनालिसिस भी करना चाहिए कि इस ग्राफ में और क्या हम पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये पार्ट सबको क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन, एनीवन? क्लियर? ओके, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव 2। एंड एज यू नो, ऑब्जेक्टिव 2 में मोर देन वन आंसर करेक्ट होते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान से आंसर करें इस चीज का। There is a possibility that more than one answer is correct. Again, position time graph is shown. Straight line motion है। How many times particle has come to rest? कैसे पता लगाएंगे हम? क्या जहां पे velocity जीरो होगी वो positions होगी? Obviously. How do you figure out the velocity from the position time graph? Velocity from position time graph. How do you figure it out? Slope. Exactly.
Exactly. You figure out the slope dx by dt. Wherever the slope becomes zero, you say the velocity has become zero. अब देख लो कहां कहां पे स्लोप जीरो हुआ है, काउंट कर लो, वही आंसर है, खत्म. It's done. 4 times. Vishwadeep is saying. Medhavini is saying 6 times. Isa is saying 6 times. क्यों? ऑप्शन में लिखा हुआ इसलिए. Sahil is saying 6 times. बिल्कुल सही बात है. देखो, लेट्स चेक dx by dt. क्या यहां पे स्लोप इज बिकमिंग जीरो? देख लो भाई, स्लोप जीरो हो गया ना. स्लोप कैसे निकालते हैं? यू ड्रॉ द टेंजेंट देयर, यू मेक द टेंजेंट ऑफ द ग्राफ देयर एंड यू विल गेट द स्लोप. बस आंसर आएगा वहां से. फिर यहां पे भी देखो स्लोप जीरो, यहां पे स्लोप जीरो, यहां पे स्लोप जीरो, यहां पे स्लोप जीरो, यहां पे जीरो. तो 1, अब काउंटिंग करनी आती है ना आपको? 1 2 3 4 5 6. सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. ये बात भी ठीक है ना? अब चलते हैं हम बी ऑप्शन की तरफ कि पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कहां पे हुई. बताइए, वेयर इज द मैक्सिमम स्पीड फॉर द पार्टिकल? मैं इसको इरेज कर देता हूं. वेयर इज द मैक्सिमम स्पीड फॉर द पार्टिकल? Yes, Benjamin. Let's go step by step. Let's first look at the B option. Then we'll come to D as well. Where is the speed of the particle becoming zero? I mean, sorry, is maximum. Can you tell exactly from the graph? Let me erase all this part to remove any, to avoid any confusion here. अब बताइए. 2 सेकेंड पे. ओके, वेरी गुड. सही बात है. यस मेधावनी, सही बात है. देखो, आपको उसके लिए स्लोप चेक करना होगा. नियर 3 एग्जैक्टली. देखो यहां पे कुछ, यहां पे अगर आप देखें तो स्लोप काफी आ रहा है. बट अगर हम ऑप्शंस को देखें तो स्पीड मैक्सिमम स्पीड वो बोल रहे हैं 6 पे. अगर हम कंपेयर करवाएं तो ये स्लोप इससे तो भाई थोड़ा सा, सॉरी, अगर इस स्लोप को देखें आप, दिस स्लोप, दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये वाला स्लोप कम है. तो मतलब यहां पे मैक्सिमम स्पीड नहीं है. यस और नो? ये तो बहुत सिंपल सा आंसर हो गया. सिंपली हम डायरेक्टली बोल सकते हैं. अब हम आगे चलते हैं कि वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव for t equal to 0 to t equal to 6 second. True or false? Velocity remains positive for t equal to 0 to t equal to 6 second. Is it true? क्या वेलोसिटी इज पॉजिटिव? नहीं. देखो यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, फिर यहां पॉजिटिव, फिर यहां नेगेटिव, फिर यहां फिर पॉजिटिव, यहां फिर नेगेटिव. ये मैं कैसे बोल रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव? स्लोप. एग्जैक्टली. स्लोप ऑब्ट्यूस एंगल आएगा ना यहां पे, और यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, यहां पे एक्यूट एंगल आएगा, फिर यहां पे फिर एक्यूट एंगल आएगा. एक्यूट एंगल मतलब tan थीटा पॉजिटिव, इस तरह से. और ऑब्ट्यूस एंगल मतलब tan थीटा नेगेटिव. तो वेलोसिटी ही रिप्रेजेंट करता है tan थीटा. ओके, चलो. नाउ लेट्स गो टू द डी पार्ट. द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शोन इज नेगेटिव. ये बताइए आप, ट्रू और फॉल्स? अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा सही नहीं है एक बुक में. तो यू हैव टू सी द ग्राफ प्रॉपरली. देखो,
नो, इट्स नॉट ट्रू बेसिकली एज पर दी बुक। क्यों? देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम की कुछ वैल्यू होगी t। नाउ द फाइनल पोजीशन इज समवेयर हियर, so this is the final position and initial position is here। ठीक है, बट ये थोड़ा सा डायग्राम में गलती है यहाँ पे। दिस ग्राफ वुड हैव शुड हैव बीन स्टॉप्ड हियर ओनली। अगर ये ग्राफ यहां स्टॉप हुआ, क्योंकि बिकॉज दैट्स द ऑप्शन गिवन इन दी एनसीआर इन दी एससी वर्मा बुक। एससी वर्मा बुक में इसको गलत बोला हुआ है, डी ऑप्शन इज नॉट शोन। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये ग्राफ को यहीं पे रुक जाना चाहिए था। यस और नो? है ना? बट उन्होंने बोला है कि डी ऑप्शन इज रॉन्ग। एक्चुअली यहाँ पे इट्स ट्रू, बिकॉज अगर आप देखें तो दिस इज एक्स वैल्यू, कुछ यहाँ पे दिस इज द एक्स वैल्यू। लेट्स से कुछ नंबर हुआ 12 एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन, कुछ नंबर हुआ लेट्स से 15। तो फाइनल इज 12, इनिशियल इज 15 डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप आंसर ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। एग्जैक्टली व्हेन यू लुक एट दिस ग्राफ यू गेट द आंसर नेगेटिव। बट एससीवी में एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ, उन्होंने डी को गलत बोला हुआ है। तो इसमें ग्राफ में कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा गड़बड़ है इस ग्राफ के अंदर। आपने बिल्कुल सही आंसर बोला है, इट इज ट्रू। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं प्रॉब्लम्स का। वी हैव टेकन सम सिंपल क्वेश्चंस, तो एक क्वेश्चन और करते हैं इजी, उसके बाद हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस पे चलेंगे। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए and travels along the solid curve as shown in the figure। आपको ये बताना है approximately the position where the average velocity between the points A and B has the same direction as the instantaneous velocity at the point B। जैसे यहां से A स्टार्ट हुआ, अब B कोई पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट, ठीक है। यू हैव टू टेल द एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, वो ऐसा लोकेशन जहां पे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन इज सेम। दैट पोजीशन यू हैव टू फिगर आउट। एवरेज वेलोसिटी के लिए यू लुक एट दी displacement vector। For average velocity you will look at the displacement vector, and for instantaneous velocity you will look at the slope at that point। ये difference है। Yes Benjamin, yeah, approximately you can say that's correct, exactly। अराउंड x इज इक्वल टू 5, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब लोग। इट्स अराउंड x इज इक्वल टू 5। देखिए कैसे, इसे मान लेते हैं कि अराउंड x इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं। तो यहां पे वेयर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसे, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। बट व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर, तो थोड़ा स्लाइड सा यहाँ पे चेंज आएगा वेलोसिटी वेक्टर में। इट विल बी लाइक दिस, टेंजेंशियल। सो टेंजेंशियल लाइक दिस, ठीक। अगर हम यहां पे देखें कुछ इस पॉइंट पे, या फिर कुछ इस पॉइंट पे देख लेते हैं, तो यहां पे वेलोसिटी वेक्टर विल बी लाइक दिस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट एवरेज वेलोसिटी वेक्टर विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पे भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। इस पॉइंट पे अगर देखें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लाइक दिस, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी इज लाइक दिस। तो ये भी नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जहां पे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर वुड हैव द सेम डायरेक्शन, ऐसा पॉइंट उठाते हैं कोई। तो इफ यू पिक सच पॉइंट तो आपको कहीं यहां पे दिखेगा वो, इस वाले एरिया में, इस रीजन में। क्योंकि यहां से जब आप ज्वाइन करोगे तो इट वुड टेक द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
तो लेट्स सी, यहां पे कहीं ले लिया हमने। अब देखिए आप, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि यही डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल माइनस इनिशियल, एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर आल्सो अप्रोक्सीमेटली, इसलिए this would be the answer, and the answer would be the option in which you will have the option which is containing 4 to 6 meter, वहां से आप उठा सकते हैं anything which is in between 4 to 6 meter, वहां से you can pick it. So did you understand? ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था जो यूजुअली आपको नहीं मिलता है, कि एवरेज वेलोसिटी के लिए यू हैव टू सी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए यू हैव टू सी द स्लोप का वेक्टर. चलिए, लेट्स गो टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे. Okay, and that's the question from the JEE 2008. ग्राफ्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फॉर ग्राफिकल डिस्कशन एससीवी में थोड़े कम क्वेश्चंस हैं, तो आप जेई के प्रीवियस ईयर भी लगा लें, ठीक है ना. एससीवी में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो हैं, बट उसमें ग्राफिकल प्रॉब्लम्स थोड़ी कम है. तो आई हैव टेकन 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एज वेल. इट्स अ गुड प्रॉब्लम. एक पार्टिकल है विच इज एट रेस्ट and it starts moving towards the right direction, I mean towards positive x direction. At the same instant, there is another particle which passes through the x is equal to 0. The first particle was at rest and it starts accelerating from speed 0. But if you talk about the particle number 2, that was already at x is equal to 0. Oh, sorry, that was already moving and it crosses the x is equal to 0 position with a constant speed. Position of first body is given by x1 and position of second body is given by x2. You have to calculate which of the following graphs exactly represents the x1 minus x2 versus time behavior. That is the question. Benjamin, how? How did you calculate? That was a very quick answer. No, Isa, wrong. Benjamin, you have given the right answer. That was very quick. How did you calculate so fast? What's the method? Yeah. Then second body already has in motion. So what if second body already has in motion? Yes, very good. Nice approach. देखिए, what Benjamin has to say. He is saying that, sir, the particle 1 is at rest. It will start the motion. So its velocity will start increasing with time. 0, 1, 2, 3, like that. But when you talk about the particle number 2, it is already in the motion. Yes. If it is already in the motion, that means initially who will dominate? Starting में dominate कौन करेगा? Particle number 2, because it has already some velocity. और पार्टिकल नंबर 1 के पास थोड़ी सी वेलोसिटी अब 0 से होना स्टार्ट हुआ. लेट्स से पार्टिकल 2 ऑलरेडी हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एंड पार्टिकल 1 का वेलोसिटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो जब तक उसकी वेलोसिटी 10 ना पहुंच जाए, 10 से भी आगे जाना पड़ेगा, राइट? तब जाके कुछ काम बनेगा. यस और नो? तो स्टार्टिंग में हु विल डोमिनेट? स्टार्टिंग में ऑब्वियसली हु विल डोमिनेट? द पार्टिकल नंबर 2. So if you talk about the x1 minus x2, so it's pretty clear that this would be a lesser number and this would be a greater number. The answer in the beginning would be negative, and that is shown in only one of the option, which is the option B, and hence he is saying it is the right answer. Very good approach, nice. और अच्छे और भी कर सकते हो आप if you want to do it numerically, that can also be done.
How we can do it numerically? Let's check. Numerically हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो. Suppose we write down the equation for particle 1, x1. We can write it as half at square. Some acceleration a is there. We don't know its value. And for particle 2, when it crosses the x is equal to 0, and already it is in the constant velocity motion. So we can write simply as that constant velocity multiplied time. Now these are the two equations we have, right? अब देखिए आप, if you calculate x1 minus x2, what would be coming? Half at square minus vt. अब x1 minus x2 is taken on the y axis. तो ये ग्राफ कैसा है बताइए जरा देख के. Which type of graph is this? Straight line, ellipse, parabola, hyperbola? Which type of graph is this? Y versus time. x1 minus x2 को मैंने y बोल दिया है. It's a parabolic graph. It is a parabolic graph. Why? Because one power is linear and another power is 2. हमेशा parabolic होगा वो. ठीक है, एक पावर लीनियर एक पावर 2. इट्स अ पैराबोलिक ग्राफ. तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, ऐसे ही यू हैव टू फिगर आउट. तो पैराबोला विल ओपन टुवर्ड्स द एक्सिस विच इज हैविंग लेस पावर, है ना. तो लेस पावर किस तरफ है? y की तरफ. तो पैराबोला विल ओपन टुवर्ड्स y एक्सिस. But this is a shifted parabola. The parabola is not passing through the origin here. So we will draw it like this. But time negative नहीं हो सकता. इसलिए negative part we will remove. Hence we are saying the option B is also true. So either you can do it numerically or you can do it जैसे Benjamin has done. Both were correct. Right? So that is the last question of the day. Did you understand this problem? Any doubt you can ask? No doubts? Okay. So now let's continue in the next class with some problems. Meanwhile, you can take some homework questions as well. This is also a homework question for you. It's from the previous year. Okay. You can take the screenshot of this. Then you can take another homework question. This one. You solve these problems and tell me in the next class if there is any problem you have faced. We will discuss them once again. This question is very good. You should try this question once. है ना? चलो फिर आज के लिए इतने रखते हैं फिर. Now we'll continue from the next class. Thank you so much. Okay then guys, bye bye. Enjoy. Yeah, thank you. Welcome guys.